Hello everyone, and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh and जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया है कि हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो इस वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द लीगल सेक्शन दैट इज फॉर द क्लैट 2024 और इस वीडियो में आई विल बी टेकिंग यू फॉरवर्ड विद पैसेज नंबर 1. सो टू मेक इट क्लियर, सिंस ये पहला ही वीडियो है तो इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास क्लैट 2024 का कोई दूसरा सेट हो, because there were 4 sets which were created last year, so there would be different in the number of the questions, so it's the reason उसको आसान रहे मैंने exact paper की numbering नहीं ली है. I've just taken the number कि total number of questions legal में कितने थे. so चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. On the screen आप लोगों को पहला पैसेज दिख रहा होगा. इस वीडियो में I will be helping you to understand कि पैसेज को अप्रोच कैसे करना था, क्वेश्चन के आंसर्स क्या थे एंड एवरीथिंग which is very much relevant for you to understand कि previous year पेपर्स जो आए थे वैसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं क्लैट 2025 में तो उनको अप्रोच कैसे करना है. सो शुरू करते हैं. सो दिस पर्टिकुलर पैसेज इज टेक्निकली अबाउट द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड जो बोर्ड उन लोग ने फॉर्मुलेट किया था एंड उसमें क्या कंडीशंस दी गई थी कि किसको किस तरीके से उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स ली जाएगी. दैट इज व्हाट इज ओवरऑल गिवन. तो ये पैसेज थोड़ा बहुत लेंदी लगा था बच्चों को कि 350 से 370 380 वर्ड्स तक था, बट द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज वाज क्वाइट इजी. सो लेट्स रीड इट. द इंडियन लीगल सिस्टम प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस on protecting the rights and welfare of the children. So बहुत ही basic सा statement दिया है, which they further stated that Juvenile Justice Care and Protection of the Children Act 2015 is a vital piece of legislation. मतलब ये जो act है 2015 में लाया गया था because of one of the heinous crime which took place in our country. उसके बाद इस act की बहुत ज़्यादा relevancy बन गई थी because never ever someone would have thought of कि कोई juvenile इस प्रकार का act कर सकता है. So it's a vital piece of legislation in this regard. It is designed to ensure that children in conflict with the law receive special care. So what they are saying that wherever a children is not able to get something benefit out of it, तो law में उनका कुछ ना कुछ special care होना चाहिए. They should be protected. Their treatment should be properly given with the ultimate goal of their rehabilitation and reintegration into the society. So this is what is the ultimate goal of this particular act. Going to the second paragraph, it says one of the key provisions of the act is the establishment of the juvenile justice board at district level. So as you can see on the screen कि जब मैं passage को read कर रहा हूँ, I might be underlining a lot of areas, but I'm making certain boxes and certain brackets over there. Whenever you are also solving CLAT paper, जब आप solve करोगे, अपने mocks भी आप लिखते हो या sim clats लिखते हो आप लोग, so what you guys have to do, you just guys have to mark the important areas. Like I've marked it as an ultimate goal, then I'm writing that there is an establishment of the board at a district level, so that whenever I revisit the passage, because बहुत बार ऐसा होता है हम पैसेज को रिविजिट करते तो we tend to read a lot and उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. This is a suggestion which I'm giving. So these particular boards consist of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class and 2 social workers, at least one of whom should be a woman. So this is what is the criteria of setting up that juvenile justice board. The primary function, अब इनका primary function क्या है JJB का, is to determine the age of the juvenile, the circumstances in which the offense was committed, मतलब जिससे offense हुआ था उसकी age identify करना, then what was the circumstances कि इसको ऐसा offense करना पड़ गया, and whether the juvenile should be sent to a special home or released on a probation. So ये सारी चीजें इनका primary function बन जाता है इस board का. That is the part of the second paragraph. The act makes a clear distinction between a child in conflict with the law and child in need of care and protection. So conflict with the law एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे आया था, तो इनके बीच में डिस्टिंक्शन का क्या बेसिस बनता है वो देखते हैं. अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ इज द वन हु हैज committed an offense. मतलब conflict with the law means there is a law और उसने law के against कुछ किया है, that is what they say कि उसने कुछ crime किया है. While a child in need of care and protection is a child who is vulnerable or at risk and requires special care and support. मतलब जो which has been exposed to a particular risk, तो उसका care required रहेगा. Moving forward, the last paragraph says that the act जो 2015 दिया गया है, it introduced a unique approach to dealing with the children who are in conflict with the law for children between the age of 16 and 18. मतलब ये juveniles तो हैं, but एक अलग तरीके से इनके क्राइम को भी देखा जाएगा. वो क्या है आगे देखते हैं.
who have committed the heinous offense. So now, so what was the law? और लॉ में एक चीज साइलेंट थी, कुछ दिया भी नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि एक 16 साल का बच्चा कोई हीनियस क्राइम कर सकता है. बट नाउ सर्टेन क्राइम्स हैव बीन कमिटेड, तो लॉ में अमेंडमेंट आया जिससे से कि कोई भी बच्चा अगर 16 से 18 एज की बीच में आता है, ही इज अ जुवेनाइल, और अगर हीनियस क्राइम कर देता है, दे कैन बी ट्राइड एज अडल्ट्स सब्जेक्ट टू द प्रीलिमिनरी असेसमेंट बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. और वन ऑफ द सीरीज जो अगर आई थिंक हॉटस्टार पे आई थी, या मे बी सोनी लिव पे, मे बी शायद हॉटस्टार पे आई थी, तो उसमें पंकज त्रिपाठी जी वाज वन ऑफ द लॉयर. तो उसमें भी जो आई थिंक सेकेंड सीजन में यही पर्टिकुलर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पॉइंट्स उसमें रेस किए गए थे जब केस की सुनवाई होती है. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज है, अगर जाओ तो देख सकते हो. दिस असेसमेंट कंसिडर द चाइल्ड्स मेंटल एंड द फिजिकल कैपेसिटी. तो ये असेसमेंट क्यों करना है? ताकि बच्चे का, मतलब उसे ट्राइड एज अडल्ट देखना है, तो पहले उसकी एक मेंटल कैपेसिटी एंड फिजिकल कैपेसिटी देखी जाएगी कि क्या वो ऐसा क्राइम कर भी सकता था. If the board determines that the child should be tried as an adult, the case is transferred to the regular criminal courts. मतलब अब उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नहीं, बट क्रिमिनल कोर्ट लाइक द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेंगे. एज पर द इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस लग सकते हैं. द एक्ट ऑल्सो प्लेसेस restriction on the publication of information that could lead to the identification of the juvenile offender. So इसीलिए एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन भी दिया है कि भाई आप कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर इजीली पब्लिश नहीं करें, बिकॉज सच क्राइम्स हैव टू बी हिडन फ्रॉम द सोशल मीडिया. व्हाई इट इज टू बी हिडन? बिकॉज अगर नोन हो जाएगा, मल्टीपल जगहों पे ट्रोल करेंगे, हो सकता है कोई उनको आके मार वार भी दे. तो दिस इज व्हाट इज द प्रोटेक्शन दे डू. सो दैट इज लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर. दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड. क्योंकि अगर वो कभी फ्यूचर में मान लीजिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में गया और उसके बाद वो नॉर्मल भी हो गया बट क्राइम कमिटेड था, बट लोगों को पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फिर लोग उसको हमेशा उस तरीके से ट्रिगर करेंगे, एंड लोगों का तो काम ही यही होता है. चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चंस आप जैसे इस पैसेज में देखोगे, देयर आर इन टोटल 6 क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन. तो इसमें ना क्वेश्चंस बहुत लेंथी नहीं थे, पैसेज भी बहुत आसान था. तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड टाइम 5 to 6 मिनट 7 मिनट जब अपन सजेस्ट करते हैं विथ रीडिंग एंड सॉल्विंग ऑफ पैसेज होना चाहिए था, तो इसमें 4 से 5 मिनट में विथ रीडिंग सॉल्विंग हो जाना चाहिए था. ठीक है, तो अगर आप लोग ये सॉल्व करते हैं, इफ यू आर गेटिंग मोर टाइम, देन नीड टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड एज वेल. सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो मे बी आपके सेट में क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया था. सो सबसे पहले बोलते हैं टू पनिश द चाइल्ड ऑफेंडर्स. तो पनिशिंग इज द रिजल्टेंट आउट ऑफ इट, दैट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. सो ए एलिमिनेट हो जाता है. To rehabilitate and reintegrate children in conflict with the law. So this is what was given in the last part of the paragraph. अगर मैं आपको paragraph में ले जाऊंगा, so this is the part जो हमने last line में दिया गया था. So this is supporting our statement. So B could be the answer. To remove all forms of violence against the children is again an objective, but it is not the primary objective mentioned in the passage. So C is eliminated. To increase the age of the criminal responsibility is again eliminated. So we are left with only option B. So इसका correct answer option B बन जाता है. तो आप लोगों ने अगर मार्क किया होगा, very good. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, तो मैंने आपको बोला था 4 से 5 मिनट में हो जाना चाहिए था. हु मेक्स अप द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. जेजेबी में क्या होता है? अगेन सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया था. सो ये पूछते हैं क्या 2 जज होने चाहिए? नहीं, 2 जज की बात नहीं गई थी. एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की गई थी, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड 2 सोशल वर्कर, जिसमें से एक विमेन होनी चाहिए थी, बट विमेन की बात नहीं दी गई, बट मेंबर्स की बात दी गई है. तो ऑप्शन सी में बात दी गई है, 2 जजेस की बात नहीं दी गई थी. यहाँ पे दिया है अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 2 लॉयर्स. तो लॉयर्स भी नहीं दिए गए थे. इट वॉज ईदर अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. तो इसलिए बी भी एलिमिनेट हो गया, एंड पुलिस ऑफिसर्स भी नहीं है. सो करेक्ट आंसर इसका बनता है ऑप्शन सी. आई होप आप लोगों ने भी सी मार्क किया होगा. मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन व्हिच सेज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. नाउ यहाँ पे रोल की बात की गई थी. बोर्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट, उसमें उनके मेजर प्राइमरी फंक्शन की बात की गई थी. अगर आप लोग पैसेज स्क्रीन में जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए which has been mentioned that what is the primary function of this is to determine what अलग-अलग चीजें यहाँ पे दी गई थी. So let's move to the question. Question में दिया गया था to determine the punishment for the juvenile offenders. Again punishment की बात नहीं की गई है. To decide whether a child should be sent to a regular prison. Again this is out of context, so ये भी eliminate हो जाएगा. To assess the age, circumstances and make decision of the rehabilitation is absolutely which is given in the mid part of the second paragraph. तो C बनता है. To prosecute child offenders, again this is not given, so इसका भी आंसर ऑप्शन C बन जाता है. Let's move ahead with question number 4. Now the distinction part जो passage 3 para 3 में दिया गया था पैसेज के, distinction between a child in conflict with the law
एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ द केयर प्रोटेक्शन। तो कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ मतलब जो जिसने ऑफेंस कर दिया एंड किसी के अगेंस्ट जहां वायलेंस नहीं होना चाहिए था, दैट इज द पार्ट। सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन शुड बी देयर। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, बोथ टर्म्स मीन्स द सेम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज देयर इज अ डिस्टिंक्शन गिवन। A child in conflict has committed a crime while a child in need of care is vulnerable at a risk. Absolutely correct. ये वाला statement para 3 में दिया गया था, वापस जाके पैसेज में चेक करेंगे। A child in need of care protection is more likely to commit crimes. So care and protection में क्राइम की बात नहीं, क्राइम की बात की गई अगेंस्ट द लॉ। सो सी एलिमिनेट हो जाता है। अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ इज एन एडोलेसेंट ऑफेंडर इज अगेन रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हिच सेज अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 16 and 18 years have been tried as adults. So again this is given in the last paragraph. So you see कंसोर्शियम ने कैसे पेपर सेट किया गया था कि हर पैराग्राफ के फ्लो में क्वेश्चन दिए गए थे एंड लीगल रीजनिंग सेक्शन ओवरऑल भी क्लास 24 में आसान ही था। सो दैट इज व्हाट could be an easy one. So they can always be tried in adults, so they can never be always in some crimes only. So this is wrong because it's an extreme. After a preliminary assessment by the Juvenile Justice Board could be considered as an option, क्योंकि असेसमेंट अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा, जो कि लास्ट पैराग्राफ में दिया भी गया, इफ वील सी फॉरवर्ड अगेन व्हिच सेज दैट दे कैन बी ट्राइड एज एडल्ट सब्जेक्ट टू द प्रीलिमिनरी असेसमेंट बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सो एब्सोल्युटली डायरेक्ट लाइन दी गई है, मतलब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही मतलब मजा आ गया। तो बी आंसर हो सकता है व्हेन दे हैव कमिटेड एन ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ द सीवियरिटी इज अगेन रॉन्ग बिकॉज सीवियरिटी है एंड अगेन सब्जेक्ट टू द बोर्ड का क्या असेसमेंट आता है। व्हेन दे रीच द एज ऑफ 18 years नॉट गिवन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो एज यू गाइज आर सीइंग दिस वीडियो, सिर्फ सही आंसर नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करने में सर ने क्या रीजनिंग दी है। और अगर यही सारी चीजें आप लोग को पसंद आ रही हैं और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगे, ये सीरीज अच्छी है कि नहीं, और ऐसी कौन सी और सीरीज आप लोग के लिए आनी चाहिए बिफोर द क्लास टेक्स प्लेस। सो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है गाइस ऑप्शन बी। तो फिफ्थ का आंसर भी बी बनता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग restrictions on the publication of information related to juvenile offender. This is the last part of the last paragraph which has been given. So it says to increase the age of criminal responsibility. No, यहाँ एज इंक्रीजिंग की बात नहीं गई थी, रादर देन उन्होंने बात की थी कि भाई उनकी प्रिवेसी बनी रहे ताकि कभी फ्यूचर में जाके उनको प्रॉब्लम ना हो। तो प्रिवेसी का पॉइंट बी में दिया गया, तो बी आंसर हो सकता है। टू एनकरेज पब्लिक शेमिंग ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। तो यस, पब्लिक शेमिंग ऑफेंडर्स का बचाना चाहते हैं बट मेजरली फोकस है उनकी प्रिवेसी पे, जो पैसेज में दिया है। तो विच इज क्लोजर, बी इज क्लोजर, सो दैट्स व्हाई वी विल गो विद बी। टू हेल्प लॉ एनफोर्समेंट टू ट्रैक जुवेनाइल ऑफेंडर्स इज रॉन्ग। सो इसका भी आंसर क्या बन जाता है ऑप्शन बी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज लोगों तक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।